first day in Landor and हमने check in किया. We had a nice lunch, thukpa and momos, and then we met some interesting people, so I interviewed them. And now it's almost 4:25 by the clock, and we've come out for a stroll. So ये है view. So our hotel is right at the corner, Dorma's Inn, and that is Ruskin Bond's house over there, and there are doggos here. And Queen of the Hills it is. We're going towards Char Dukan, not Dukan. ITM DRDO. So there are two roads when you come out of Dorma's. There's one that goes to the right, one to the left. Right is shorter but more elevated. Left is like this, better but it's far. And the struggle is real. So right now it's neither too hot nor too cold. It's quite pleasant to walk. But there are cars passing continuously from this patch, and that's not so nice. We couldn't go up, so भैया हमें ऊपर तक राइड दे रहे हैं. और लाल टिब्बा जाना हो तो किधर से जाएगा? सीधा. अच्छा, आप कहाँ तक जा रहे हो? वो तो लाल टिब्बा जा रहे हैं. तो वहीं चलते हैं, सनसेट देख के आ जाएंगे. या आप बताओ कैसे करें? वहाँ पे कुछ है? हेलो बोल दो भैया. हेलो. भैया ने हमारा पहला हमें लिफ्ट दी. फर्स्ट हिच हाइकिंग एक्सपीरियंस वाज कूल. अच्छा, we've reached चार दुकान. How cool is that? It's so cute. Acha, this is Anil's Cafe, the oldest shop, Char Dukan, Mussoorie. So यहाँ पे I've heard that you get a lot of nice jams and marmalades and everything. Himgiri Cafe, pancakes, waffles, momos and much more. There is an India Post there, and there's a Tip Top tea shop. Also, ये कौन सा चर्च है? Kellogg's की दूसरा वाला? Kellogg's है? अच्छा. So that is Kellogg's church. Just a second. I'm going to go in and make a vlog in a bit. So pretty. This entire place is so cute. And आप जा रहे हो? He's coming. Ah, how cute! There's a small cafe de Landor. Nice. This place is so cute, na? So we're sitting at the Anil Cafe.
at Anil's Cafe, and I love how cute the chairs are. So, says that this is the oldest shop of Char Dukaan, Landor Can, Mussoorie, and this is the menu, which has Maggi, toast, snacks, momos, pizza, parathas, waffles, pancakes, pakoda, eggs, and beverages. It's a small, cute little menu. The shop is also really small. If you with that now, you're going to become one no matter what. You can't play anything else. Yeah. These are the celebrities who would have come here. Order food when you arrive. We don't save one for you. With a straw. Drink. Look there. Enjoy it. So Mama take your photo and send you something with it. Did we not come in here? We use this food, Do you want to go there? The first one. मेरे नाम से ही आप एक बार बताएंगे शॉप के बारे में, कुछ बताइए। शॉप तो ये हमने खोली थी 1972 में। 1972। अच्छा। 50 साल हो गए। अच्छा, आपकी कौन सी जनरेशन है ये? हमारी थर्ड है। थर्ड और है। तो हमारे बच्चे होते मतलब वो तो अब लड़कियां हैं, चली गई अच्छा। अपने अपने घर। अच्छा, अभी तो हम ही चला रहे हैं। ओके। तो आपकी ही है शॉप? जी आपके ही नाम से है? जी अच्छा मेरे ही नाम से है और हमने इसको परचेज करी थी। अच्छा। जी और आपका यहाँ पे सबसे स्पेशल क्या होता है? स्पेशल तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये समझो आप मैगी से लेके आप कुछ भी खा सकते हो। अच्छा, सब स्पेशल है। हाँ, अच्छा मैगी है, हनी जिंजर लेमन टी है, अच्छा, पैनकेक है, वॉफल है। सब कुछ। हाँ, ये बहुत पसंद करते हैं लोग आजकल। आपका शॉप कब से कब तक खुला रहता है? सुबह 8 बजे शाम के 8 बजे तक, अच्छा, 12 घंटे। 12 घंटे। कौन कौन सी सेलिब्रिटीज आ चुकी हैं? कौन कौन सी यहाँ तो सेलिब्रिटीज आए सबसे पहले हैं? तो बहुत साल पहले गुलजार साहब आए थे। गुलजार साहब। अच्छा। उसके बाद आए लक्की अली, फिर सचिन तेंदुलकर जी आए और नील नितिन मुकेश जी आए अच्छा और ये क्या नाम सचिन धोनी जी आए। अच्छा, ये विशाल सब आपके भारद्वाज जी तो सामने खैर यहीं है? रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सारी फोटो लगी हुई थी उनकी। ये आपके और सामने ही रस्किन है बॉन्ड। सारे? जी हाँ, अच्छा। ये ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी ना, ये तो अभी की बात आपके है। साथ ही तो है जी फोटो? जी, अच्छा वो वाली फोटो मेरे साथ ही है, रस्किन बॉन्ड जी की। अच्छा धोनी जी तो पिछले साल मतलब 2020 में भी आए अच्छा और पहले 2017 में आए थे पूर्णा पटेल के साथ। पूर्णा पटेल उनकी वाइफ की फ्रेंड है अच्छा अच्छा जो मुंबई से है। अच्छा, तो यहाँ सेलिब्रिटीज आते रहते हैं हाँ और आप उनको क्या स्पेशल खिलाते हैं फिर? लोग मैगी खाते हैं, पराठे खाते हैं, यही चीज़ें खाते हैं लोग अधिकतर। सेम। अच्छा है। शॉप ये 4 दुकान, सिर्फ 4 ही दुकान है? 4 दुकान की, अब तो 5-6 दुकान हो गई यहाँ पे। हाँ, आप 5-6 पहले हो 4 गए। ही थी। हाँ 4 भी क्या थी, मतलब लोगों ने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया 4 दुकान। पहले एक हमारी दुकान थी, एक उधर थी किनारे में। सबसे पहली आपकी थी इस जगह में? एक ये थी, फिर वो उधर वाली फर्स्ट वाली टिप टॉप टी टिप शॉप। टॉप टी शॉप। हाँ फिर उसके बाद एक वहाँ परचून की दुकान थी, अच्छा फिर एक पोस्ट ऑफिस था। अच्छा। बस यही दुकान थी। अब पोस्ट ऑफिस है? पोस्ट ऑफिस अब शॉर्ट टाइम वाला है, इसी के ऊपर ही है। अच्छा ले लो जो लेना ले लो। मैं हूँ 4 दुकान में एंड ये पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। आप लोग यहाँ रहते हैं कितने साल से? एक्चुअली ये मेरा पोस्ट ऑफिस कम मेरा घर भी है ये। अच्छा हाँ, तो हम लोग यहाँ काफ़ी लॉन्ग टाइम से, कोई 35 या 40 ईयर्स समथिंग से हैं। अच्छा। और आपका बेसिकली नाम बताएंगे? मेरा नाम त्रिलोक सिंह खरोला है। मैं एक्स इंडियन आर्मी हूँ। मैं गढ़वाल राइफल और ऐसी फोर्सेज में रहा हूँ जहाँ का भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरी पत्नी है, इनका नाम रजनी खरोला है। ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस संभालती हैं, यही देखती पोस्ट ऑफिस को। ओके, और ये 4 दुकान है जिस एरिया में आप अभी हैं।
तो यहाँ 4 दुकान एक्चुअली ब्रिटिश टाइम से हैं। ये एरिया कैंट बोर्ड में आता है। जी, पहले खाली कैंट ही था और हाँ। इंडियंस को आने का परमिशन भी नहीं। हाँ बिल्कुल, कैंट ही हुआ करता था। तो यहाँ आम लोग आते थे, फॉरनर रहते थे। ये 4 दुकान, इससे आगे सिस्टर बाज़ार पड़ता है। तो ये ब्रिटिश जब रहते थे तो जो उनके फ़ौज में वैसे किसी को बीमारी लग जाती थी, लाइलाज बीमारी जिसको बोलते थे, तो उन लोगों को वहाँ से ला के इस एरिया में छोड़ देते थे। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऐसे हैं पेड़ पौधे जिनकी खुशबू से कुछ उन्होंने ऐसे प्लांटेशन कराया कि आदमी खुद ब खुद कुछ साल बाद ठीक हो जाता था। हाँ, तो उस एरिया का नाम इसलिए सिस्टर बाज़ार है कि जो उनके केयर टेकर होती थी वो सिस्टरें होती थी, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे रहते थे, उनके नाम से सिस्टर बाज़ार हो गया, जहाँ पे आज लंडोर बेक्का उसके नाम से भी लोग जानते हैं उसे। तो 4 दुकान भी इसीलिए है कि 4 दुकान, इस जगह का नाम इसलिए कि 4 शॉप्स हैं यहाँ पे। अभी हो सकता है एक आध मेरे ख्याल में बैठ गई हो, लेकिन वो डिवाइड हुई है अपने परिवार में। तो यहाँ एक्चुअली कैंट होने के नाते नया कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, जो ब्रिटिश के टाइम पे था वही आज भी है। और इसीलिए जो फॉरेस्ट बचा हुआ है इसी के कैंट होने के कारण बचा हुआ। बाकी आप देश में कहीं भी देख लो, कमर्शलाइज हो गया, जो कि एक्चुअली मसूरी में 1994 से न्यू कंस्ट्रक्शन बैन है। हाँ, भी हो रहा है, फिर भी हो रहा है, मतलब आप पता ही है। हाँ, अपना हिंदुस्तान काफ़ी वो है। हाँ, तो कैसा करे। ये आप लोग का पर्सनल घर भी है? हाँ, ये पोस्ट ऑफिस का भी। हाँ, कम पोस्ट ऑफिस है। अच्छा, तो कितने सालों से आपकी फैमिली में है ये घर? ये घर हमारे तो बहुत ज़्यादा नहीं, कोई 22-23 ईयर्स है। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर है आपका ये, आपकी खिड़की बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू। ये एक्चुअली ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है, हम लोगों ने खाली से रिनोवेट किया। अच्छा। ये उसके जो फर्श वगैरह या वो है, ये तो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये लकड़ियों के ऊपर होता था। तो ये फर्श वर्ष हमने जब लिया तो उसके बाद हम लोगों ने डाला है। हाँ, पर ये देखो आज के दिन ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये एक्चुअली सीजा शीट जो आती है ना अपनी टीन पे है। हाँ, जो हाँ बिल्कुल हाथ से निकासी करी हुई है। ये अभी आपको मिलेगा नहीं, कोई करने इतनी मेहनत करने वाला कोई है नहीं, उसी टाइम का है, ओल्ड स्टाइल है। इसलिए हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया, बाकी सारा स्ट्रक्चर अंदर का चेंज किया ऐसा। बाकी और भी कुछ इस जगह के बारे में, लैंडोर के बारे में? लंडोर से थोड़ा आगे आप जाएंगे, 900 मीटर आगे लाल टिब्बा पड़ता है। जी, सनसेट और सनराइज। हाँ, सनसेट पॉइंट ये होएगा, और लैंग्वेज स्कूल के पास में थोड़ा वो सनराइज पॉइंट होएगा। चर्च से थोड़ा लेफ्ट में, हाँ, वो सनराइज पॉइंट होएगा। हाँ, बस फिलहाल तो यहाँ का यही है। बस ऐसी रहे ये लाइफ, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। जैसे अक्सर हर एक फैमिली को रहता है कि कहीं जगह जाते हैं कि यार यहाँ बसने का दिल कर रहा है, यहाँ खास घर होता तो ठीक होता, लेकिन हमारे मन में कभी नहीं आया कि देश के हमने भी लगभग कोने कोने का चक्कर काटे कि कभी यहाँ बच जाएं, क्योंकि हमें सबसे अच्छा यही लगता है। हमें लगता है कि यहाँ से बाहर कभी नहीं जाना, मतलब पीसफुल लाइफ है यहाँ। वो दिल्ली मुंबई वाली भाग दौड़ नहीं है, वो वाले हो हल्ला नहीं है कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और हल्ला। और फिर सबसे मेन उत्तराखंड का एक चीज़ है कि उत्तराखंड आदमी को लगता है कि जो है वो सफिशिएंट है। मतलब हो सकता है आप लोगों को न लगे, पर मेरे को लगता है सभी लोग संतुष्ट होते हैं। आप कहीं भी जाओगे, वो चाहे कम कमा रहा होगा चाहे ज़्यादा कमा रहा होगा, उसी में संतुष्ट है वो। हाँ, ये संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे को मैं भी आर्मी होने के नाते पूरे देश के कोने कोने में गया हूँ, लेकिन जो संतुष्टि मैंने यहाँ पाई लोगों के अंदर कि जो यार वो ठीक है, हम 10 भी कमा रहे ठीक है, 2 करोड़ भी कमा रहे ठीक है, वो अपने में परफेक्ट है। तो ये चीज़ थोड़ा अच्छी लगी, इसलिए यहाँ से जाने का कभी दिल नहीं करता। और मेनली यहाँ के लोग आपने देखे भी होंगे, हेल्पफुल होते हैं। आप 1 किलोमीटर का रास्ता पूछेंगे तो 2 किलोमीटर बताएंगे आपको कि ऐसा ऐसा जाना, आगे ऐसा भी होगा, वहाँ पे महंगाई होगी, वहाँ पे लोग ठीक नहीं होंगे। लिफ्ट भी दे दी थी, बिल्कुल। चल नहीं पा रही थी तो मैं अपने ऑफिस से आता हूँ तो पक्का नीचे अगर टूरिस्ट को लिफ्ट मांगता है तो जरूर दे देता हूँ, 4 दुकान तक छोड़ देता हूँ ऐसा। थैंक यू, बस यही है। और बताएं। थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नीचे आपकी शॉप? हाँ, मेरे ब्रदर शॉप चलाते हैं नीचे वाली। ब्रदर शॉप चलाते हैं? हाँ, उनका नाम तब की ही है? हाँ, वो भी तभी बिल्कुल कंटिन्यू है। हाँ, पहले सभी लोग, मैं भी पहले शॉप में बैठता था, अभी बीच वाले ब्रदर हमारे चलाते हैं। तो उसका स्पेशलिटी क्या है और नाम क्या है? एक्चुअली हमारे शॉप का नाम है अपना हिमगिरी कैफ़े। हिमगिरी कैफ़े स्पेशलिटी यहाँ की मेनली एक तो अपने पैन केक, वेफल्स और लेमन हनी जिंजर टी। अगर 4 दुकान आई हो तो उसे ज़रूर पिए के जाइएगा, क्योंकि आप जब अपने घर जाएंगे तो बोलेंगे 4 दुकान गए थे वो पिया, और आपने नहीं पिया तो आप उसे मिस करेंगे। ये नहीं किया तो क्या किया वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, अभी पी के जाएंगे। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थोड़ा दूर से दिखा दो बस।
अच्छा, यहाँ से खरीद के वहाँ पोस्ट कर सकते हैं ऐसा? कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मसूरी के हैं, बहुत सुंदर है केम्प्टी फॉल्स। और ये रुक से कहीं